بسم اللہ الرحمن الرحیم. نئی بات کے ساتھ میں ہوں فواد احمد. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم موجود ہیں ادارہ نور حق میں, جو جماعت اسلامی کراچی کا مرکز ہے. یہاں جماعت اسلامی کراچی نے ایک بہت بڑی کیمپین حقوق دو کراچی کو کے عنوان سے چلائی ہے, جس کا ریفرنڈم آج یہاں پر اس کے نتائج کا آپ سے کچھ دیر بعد اعلان ہوگا. آخر مہم کے بنیادی نکات کیا ہیں, کراچی کے کن حقوق کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, کن حقوق کے حوالے سے جماعت اسلامی سڑکوں پر نکلی ہے, کن حقوق کے لیے ایک بڑا جلسہ کیا گیا اور کن حقوق کو لے کر جماعت اسلامی اب عوام میں جانا چاہتی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حافظ نعیم الرحمان صاحب, جو جماعت اسلامی کراچی کے امیر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جماعت کی دیگر مقامی قیادت بھی ہمیں جوائن کرے گی. ان سے اس ریفرنڈم کے بارے میں پوچھیں گے اور ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھیں گے کہ آخر اس کیمپین کو آگے تک چلانے کا ان کا مقصد کیا ہے اور کون سے مطالبات کے بعد یہ کیمپین اپنے منطقی انجام تک پہنچے گی. حافظ صاحب, بہت شکریہ, آپ نے یہاں پر مدعو کیا ہے کہ ریفرنڈم کا ہم سما دیکھ رہے ہیں, پورے شہر سے کارکنان آ رہے ہیں, بیلٹ باکسز یہاں پر موجود ہیں, بیلٹ باکسز کا ہم دیکھ رہے ہیں, کاؤنٹنگ کا بھی عمل شاید کچھ دیر بعد شروع ہو جائے. یہ تو اس کا ایک جز تو ہو سکتا ہے, ایک جلسہ آپ کا بہت بڑا ہوا وہ بھی ایک جز ہو سکتا ہے, لیکن آخر کون سے بنیادی مطالبات ہیں کہ جن کو لے کر آپ چلے ہیں کراچی کے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کے کون سے حقوق ہیں جن کو غصب کر لیا گیا ہے اور اس کے حقوق کے لیے آپ کو نکلنا پڑا ہے؟ دیکھیں فواد, ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بے شمار کارکنان ہیں جو جگہ جگہ کراچی بھر سے آ رہے ہیں, اور ابھی ریفرنڈم کمیشن کے جو ہمارے چیف ہیں انور منصور صاحب, وہ بھی تشریف لے آئیں گے اور پہلا نتیجہ ان کے سامنے ہی کاؤنٹنگ کی جائے گی, اور پھر ان کی اور پورے جو ریفرنڈم کمیشن ہے ان کی نگرانی میں یہ پورا عمل ہوگا. دیکھیں, بنیادی بات یہ ہے کہ کراچی کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی اور ظلم یہ ہے کہ اس کی تو آبادی کو ہی صحیح نہیں گنا گیا ہے, جس کے نتیجے میں کراچی کے جتنا بھی انفراسٹرکچر ہے, اس کی جو پلاننگ ہے, ماسٹر پلان ہے, اس کی ٹرانسپورٹیشن ہے, پانی ہے, سیوریج ہے, بجلی ہے, گیس ہے, جب تک آپ کسی جگہ کے رہنے والوں کو صحیح گنیں گے ہی نہیں تو آپ پلان کیا کریں گے, بالکل آپ ایگزیکیوٹ کیا کریں گے, آپ چلائیں گے کیسے؟ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹوٹ پھوٹ ہے, جو ہر طرف افراتفری ہے, اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ اس کی بنیادی کچھ مسائل ہیں جس کی وجہ سے. دوسری بات یہ ہے کہ اس شہر کے ساتھ المیہ یہ ہے کہ یہ شہر پورے پاکستان کو 67% ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے. ابھی ٹیکس رپورٹ آئی ہے, کراچی کا ٹیکس ایک طرف, پورے ملک کا ٹیکس دوسری طرف, لیکن اس کے ساتھ سلوک یہ ہے کہ نہ وفاقی حکومت اس کو آن کرتی ہے, نہ صوبائی حکومت اس کو آن کرتی ہے, بلکہ جو بلدیہ میں بھی آئے تھے وہ بھی یہ کہتے رہے کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, جو وہ کر سکتے تھے وہ بھی انہوں نے نہیں کیا, جس کے نتیجے میں جو ہے کراچی کے شہریوں کا اس وقت حال یہ ہے کہ وہ بے آسرا سے محسوس ہوتے ہیں. کوئی محکمہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں جا کر ان کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. گٹر بھی اگر بہنے لگے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. کوئی صورتحال ایسی نہیں ہوتی کہ جس میں لوگوں کو ریلیف ملے, اور اب یہ صورتحال باقی آبادیوں سے ہوتے ہوتے ڈی ایچ اے تک پہنچ گئی, اور اس بارش نے سب کو ایکسپوز کر دیا کہ کوئی سسٹم ہی ایگزسٹ نہیں کرتا. 25 طرح کے ادارے ہیں, کوئی صوبائی حکومت کے تحت ہے, کوئی وفاق کے تحت ہے, کوئی کسی کے تحت ہے. ابھی کل واقعہ ہوا مسکن چورنگی پر, مجھے آپ کے میڈیا سے لوگوں نے کہا کہ 2.5 گھنٹے ہو گئے, ہمیں نہیں پتا چل رہا کہ کس کی چین آف کمانڈ میں اس مسئلے کو ریزالو کیا جائے گا. آپس میں جو ہے وہ لوگوں کا کوئی سنکرونائزیشن نہیں ہے. تو ایسی افراتفری کی صورتحال میں شہر کی اونرشپ کوئی پارٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. جماعت اسلامی نے اس کا فیصلہ کیا کہ ہم اس شہر کی اونرشپ بھی لیں گے, عوام میں اویئرنیس پیدا کریں گے, جو مایوس اور نا امید لوگ ہیں ان کو ایک امید دلائیں گے. تو ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں صحیح گنو. ہم 3 کروڑ ہیں تو 3 کروڑ آپ کی کتابوں میں ہونا چاہیے. ہمیں آدھا آپ کھانے کے بعد آپ ہماری پلاننگ شروع کرو گے. اچھا حافظ صاحب, آپ نے ایزمپشن کیسے کر لی کہ ہم 3 کروڑ ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ ہم 2 کروڑ ہوں, 1 کروڑ ہوں. آپ نے تو مطالبہ یہاں سے شروع کیا کہ ہم کراچی میں جو ہے وہ 3 کروڑ ہیں, تو یہ آپ کو کیسے خیال آ گیا کہ ہم 3 کروڑ ہو گئے؟ حکومت کہتی ہے جو اعداد شمار آئے ہیں, جو پہلے اعداد شمار آئے ہیں, اس میں 1.5-2 کروڑ کے قریب آبادی ہے. تو آبادی زیادہ ہونے سے آپ کو فائدہ کیا ہے؟ مجھے بتائیں, 3 سال ہونے کے باوجود آفیشیل نوٹیفیکیشن اب تک کیوں نہیں آ سکا؟ اس کا سبب ہی یہ ہے کہ مردم شماری میں جو بھی ایسے لوگ تھے کہ جو پڑھے لکھے ڈیموگرافر تھے, مثلا میں آپ کو مثال دوں ڈاکٹر مہتاب کریم صاحب کی, یہ صوبائی حکومت کی طرف سے نمائندے تھے اس مردم شماری میں. آپ پوچھیں, وہ میڈیا پہ آن ریکارڈ ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جتنی تجاویز دی نہیں مانی, اور انہوں نے بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگوں کو کہ جن کا مستقل پتہ کہیں اور کا تھا, جو رہتے ہیں 40 سال 50 سال 30 سال رہتے ہیں, انفراسٹرکچر یوز کرتے ہیں, یہاں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, کماتے ہیں, تو ان لوگوں کو گنا نہیں گیا. اس میں یہ بات بہت واضح رہنی چاہیے کہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا کام ہی یہ ہے کہ جو جہاں رہتا ہے اس کو گنا جائے گا. یہاں تو افغانیوں کو بھی گنا جائے گا, لوگوں کو اعتراض ہو یا اختلاف ہو یا اتفاق ہو, جو یہاں رہتا ہے اس کو گنا جائے گا. یہاں پر بنگلہ بولنے والوں کو بھی گنا جائے گا, یہاں برمیوں کو بھی گنا جائے گا, اور یہاں جو لوگ یہاں کے مقامی رہنے والے ہیں ان کو بھی گنا جائے گا. تو ہیڈ کاؤنٹ کا مطلب مردم شماری ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا کہ آپ شناختی کارڈ کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو ادھر ادھر کر دیں. اسی طرح پورے پاکستان میں ہوتا ہے, تو کراچی میں کیوں نہیں ہوگا؟
दूसरा मसला ये होता है, नहीं, एक चीज मुझे और बताइएगा कि अगर आप समझते हैं कि हेड काउंट ठीक नहीं हुआ, किसी ने मर्दमशुमारी में कोई हेर फेर की है, तो इसका जिम्मेदार और इसका फायदा किसको जाता है? मतलब इसका जिम्मेदार कौन है इस हेर फेर का, और आप क्या समझते हैं कि इसका फायदा किसको जाएगा? कौन है जो कराची को कम गिनना चाहता है, उसके पीछे उसकी क्या साजिश हो सकती हाँ, है? ये बहुत अहम बात है। देखिए, कराची प्रॉब्लम पैदा करता है, चाहे वो वफाकी हुकूमतें हों। हिस्ट्री आप उठाकर देख लें, कराची बोलता है, कराची सवाल उठाता है। तो 30-35 साल से तो इन्होंने इसका बंदोबस्त ये किया था कि इसको एक जजीरा बना दिया था, एक आइसोलेटेड इलाका बना दिया था, इसलिए कि एक ऐसी सियासत की नजर ये हो गया कि जिसमें हमें मिला कुछ नहीं और तबाह बर्बाद हो गए। तो पूरे मुल्क में ही क्वेश्चन करने की आदत नहीं रही, कराची जो क्वेश्चन करता था उसको भी रोक दिया गया। तो कराची के साथ जो मुसलसल ज्यादती है उसकी वजह यह है कि चूंकि मिनी पाकिस्तान है, पूरे पाकिस्तान के लोग यहाँ रहते हैं, ये मईशत की पहिया चलाता है, और ये सब लोग मिलकर जब बोलते थे तो पूरा पाकिस्तान बोलता था। तो वो लोग के जो पाकिस्तान पे अपना कंट्रोल चाहते हैं, चाहे वो किसी भी उससे हुकूमती और बाइख्तियार और बाइख्तिदार जो लोग हैं, वो इसकी इस सिफत को कबूल करने के लिए कभी भी तैयार नहीं हुए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम खामोश हो जाएं, हमें बोलना होगा। दूसरी बात ये है कि खास तौर पर मैं सूबाई हुकूमत की बात करूंगा। इस वक्त पीपल्स पार्टी 12 साल से हुकूमत में है, उससे पहले भी 2-3 दफा 4 दफा हुकूमत में रही है। इनका क्या है कि ये जब हमारी आबादी कम होगी तो उसके नतीजे में सूबे में जो सीट्स हैं, मसलन 130 सीटें इस वक्त, अगर हमारी आबादी 1.5 करोड़ इन्होंने जैसे कर दी है तो उसके हिसाब से हमारी सीटें बनती हैं 44 सूबाई असम्बली की। और अगर हमारी आबादी सही है काउंट कर लेंगे, जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स हैं, जो मास्टर प्लान के मुताबिक प्रोजेक्शन है, जो इंटरनेशनल जो सर्वेज हैं, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट्स हैं, उसके मुताबिक हम 2.25-3 करोड़ बनते हैं साइंटिफिक बुनियादों के ऊपर। तो अगर हम 3 करोड़ होंगे तो हमारी सीटों की तादाद 62 से 65 हो जाएगी, और हमारी नुमाइंदगी इस तरह से हो जाएगी कि फिर वो लोग के जो मकामी हारियों का, मकामी सिंधियों का, बलोचों का इस्तेहसाल करके वडेरा शाही की बुनियाद पर उनकी राय पर असरअंदाज होकर ताकत के जरिए से हुकूमत में आ जाते हैं, और इसको जमहूरियत कहते हैं। और इस जमहूरियत की बुनियाद पर ये हमारी अख्तलफी करते हैं, हमारी किस्मत के फैसले करते हैं। तो ये वडेरों और जागीरदारों का जो कंसोर्शियम है, ये कराची की आबादी को गिनने नहीं देना चाहता। हम तो ये कहते हैं कि मसला लिसानी नहीं है, कराची में सिंधी भी रहते हैं, बलोच भी रहते हैं, कराची में महाजिर भी रहते हैं, पख्तून, कराची में पंजाबी, कश्मीरी, हजारेवाल, बंगला बोलने वाले, बर्मी, कौन नहीं रहता यहाँ पर? हर मसलक के लोग हैं, हर मजहब के लोग हैं। आप सबको गिने और सबको हक दें। तो पहला मुतालबा हमारा ये है कि हमारी मर्दमशुमारी ठीक हो, ताकि हमारी नुमाइंदगी ठीक हो, और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो, ताकि हमें तमाम सहूलतें हमारे शहरियों को मिले, जिसके सबसे ज्यादा हम हकदार हैं कि हम पाकिस्तान की तरक्की में सबसे ज्यादा किरदार अदा करते हैं। अच्छा हाफिज साहब, इसके अलावा और कौन से मुतालबात हैं? ज़ाहिर है कि आपकी एक बड़ी कैंपेन है, हमने देखा एक बहुत बड़ा जलसा आपने इशारा कायदीन पे किया, फिर ये रेफरेंडम का भी हम माहौल देख रहे हैं कि पूरे 4 जानिब जो है वो कारकुनान मौजूद हैं, बैलेट बॉक्सेस देखने में ज़्यादा है। रेफरेंडम पे मैं आपके पास बाद में आऊँगा, कैंपेन को आपने लेकर कैसे चलना है, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से मुतालबात हैं जो कराची के लोगों के बुनियादी हक से मुताल्लिक़ हों? वैसे तो मैंने आपको बताया, सड़कें हैं, ट्रांसपोर्ट है, मास ट्रांजिट का इशू है, लेकिन दूसरा मसला है इख्तियार। इस शहर में इख्तियार किसका है? इस शहर में चेन ऑफ कमांड किसके पास है? इस शहर का वाली वारिस कौन है? किसके पास हम देखें तो शहर का मसला हल हो सकता है। और ये उस वक्त हल होगा जब कराची को एक बाइख्तियार शहरी हुकूमत मिलेगी। जब अब ये सूबाई हुकूमतें कहती हैं कि हमें जो है वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर के तहत सूबे में इख्तियार मिलना चाहिए, तो इसी आइन में लिखा हुआ है कि यही इख्तियार बल्दियात को मुंतकिल होगा। ये बल्दियात को मुंतकिल नहीं करते और अपने सारा कब्जा कर लेते हैं। अब यहाँ लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, यहाँ एक मिनट यहाँ पे रुकिएगा, मुझे बताएं SLGA 2013 आप उसके हक में हैं? आप समझते हैं कि वो ठीक निज़ाम है जो कराची को मिलना चाहिए, या नेमतुल्लाह खान साहब का 2002 का जो एक ऑर्डिनेंस था आप चाहते हैं कि वो किसी तरह इंप्लीमेंट हो? होना क्या चाहिए? ये जो अभी ऑर्डिनेंस है तो गासिबाना, गैर जमहूरी, आमिराना ऑर्डिनेंस है। ये तो वडेरों और जागीरदारों का ऑर्डिनेंस है, ये तो आवाम के हक को गसब करने का ऑर्डिनेंस है या एक्ट है। और ये इन्होंने असम्बली से अपनी ताकत की बुनियाद पर, जमहूरी रवैया ऐसे नहीं कहते, ये ताकत की बुनियाद पर, जाली नुमाइंदगी के जरिए जो वडेरे हम पर मुसल्लत हैं, उन वडेरों ने अपनी अक्सरियत की बुनियाद पर यह गासिबाना एक पास किया। यह किसी सूरत कबूल नहीं है। अगर ये नहीं करेंगे ठीक, तो इसीलिए हम ये पूरी जो है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये जो हम मोबिलाइजेशन पैदा कर रहे हैं, ये जो लोगों को उम्मीद दे रहे हैं, इसलिए कि लोग ये कहते हैं कि हमारे हालात दुरुस्त नहीं हो सकते, जिनको हमने वोट दिए वो तो हमारा मसला हल ही नहीं करते, अब हमें ऐसे ही रहना है। जमात इस्लामी ने कहा कि ऐसे कैसे रहना है भाई, इस शहर को हम ऑन करते हैं, इस शहर की हमने खिदमत की है, इस शहर को हमने सर्व किया है, ये शहर डूबता है तो हम पहुंचते हैं, जब ये कोरोना में मुब्तला होता है तो हम काम करते हैं। तो हम इस गासिबाना एक्ट को तस्लीम नहीं कर सकते। और 2001 का जो SLGO था वो कदरे बेहतर था, अगरचे कि उसके अंदर भी वो पूरी एम्पावरमेंट नहीं थी, वो शहरी हुकूमत या मेगा सिटी या ग्लोबल सिटी की जो कैटेगराइजेशन होती है उसके मुताबिक नहीं थी, लेकिन हम समझते हैं कि वो कदरे बेहतर था। हम तो ये चाहते हैं कि इस शहर में मेयर का इंतखाब डायरेक्ट हो, इस शहर की लोकल बॉडीज एक शहरी हुकूमत हो, इसको डिसीजन मेकिंग का
का इख्तियार हो, इसकी पुलिस इसके मातहत हो, इसके तमाम इदारे, कोई LDA, कोई MDA, कोई सिंध वाटर बोर्ड जो इन्होंने बना लिया, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बना ली, KBCA को इन्होंने SBCA बना दिया, हम तो कहते हैं DHA और कैंटोनमेंट भी इसके तहत होने चाहिए ताकि एक कमांड हो, फिर आप आवाम को भी जवाबदेह हो और ऊपर भी आप जवाबदेह हो। तो इसी फ्रेमवर्क में रहते हुए अगर आप बल्दियात को इख्तियार दे देंगे तो फिर ये सवाल ही पैदा नहीं होगा कि सूबा तकसीम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बाइख्तियार शहरी हुकूमत हमारी डिमांड है, इस रेफरेंडम का पॉइंट नंबर 2। अच्छा हाफिज साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ, आपके दीगर यहाँ पे लीडर्स भी मौजूद हैं, थोड़ी सी मैं उनसे ही बात कर लूँ। जरा नाज़रीन रेफरेंडम के हवाले से ही बात हो, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि यहाँ पर सैकड़ों कारकुनान जो है वो बैलेट बॉक्सेस के साथ यहाँ पर आ रहे हैं और आने के बाद यहाँ पर काउंटिंग का अमल कहा जाता है कि मेरे अकब में जो कुर्सियाँ लगी हैं यहाँ पर इलेक्शन कमीशन बैठेगा और उस काउंटिंग के अमल को शुरू किया जाएगा। वो काउंटिंग क्या होगी, मैं हाफिज साहब की तरफ दोबारा आऊँगा, क्योंकि इस कैंपेन को हमने जब तक पूरा डिस्कस नहीं करना, यहाँ से हमने जाना नहीं है, इस प्रोग्राम को हमने ख़त्म नहीं करना। जनाब आपने तारुफ भी कराइएगा, सुना यह है कि आप यहाँ पर जो रेफरेंडम है उसके जो नताइज हैं उसकी काउंटिंग के हवाले से फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। तो ये रेफरेंडम का तारुफ के साथ मुझे ये भी बताइएगा कि रेफरेंडम का आपने क्या इंतज़ाम किया था, कराची के किन इलाकों के अंदर हुआ है, क्योंकि हम रेफरेंडम का जब तस्करा आता है तो ज़ियाउल हक का वो रेफरेंडम याद आ जाता है कि जिसमें सिर्फ हाँ के ऊपर ही लोगों ने टिक करना था, ना के ऊपर किसी ने टिक नहीं करना था। तो इसमें शफाफियत का भी बताइएगा और साथ साथ ये बताइएगा कि किस तरीके से इसको कवर किया गया पूरे कराची को। शुक्रिया फवाद। देखिए, जब हुकूक कराची मुहिम का आगाज़ किया गया तो सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता था कि आवाम की राय क्या है, आवाम किस तरह से सोचती है। हम आवाम की आवाज़ तो बन कर के खड़े हुए थे, लेकिन उनकी असल राय उजागर करना बहुत ज़रूरी था। अब एक तरीक़ा तो ये था कि रैंडमली और सैम्पलिंग के ज़रिए से ये किया जाए, लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर तरीक़ा ये था कि हर फ़र्द तक पहुँच करके उसकी राय सामने लाई जाए। तो उस लिहाज से हमने ये किया कि कराची को 10 रीजन्स में हमने तकसीम किया, 10 जोन्स में तकसीम किया दरअसल, और 10 जोन के नीचे हमने तकरीबन 100 रीजन्स बनाए और रीजन्स के नीचे तकरीबन 1000 एरियाज़ थे और हर एरिया के अंदर तकरीबन 5 से 7 पोलिंग स्टेशंस थे या पोलिंग बूथ्स थे। तो इस अंदाज से हमने कराची के चप्पे चप्पे में गडाब से लेकर के और इब्राहिम हैदरी तक और लियारी से लेकर के और बिल्कुल मरीग के आखिरी कोने तक, गुलशन हदीद तक, हमने हर कराची के चप्पे में पहुंच करके लोगों की राय मालूम की है और लोगों के सामने ये फॉर्म पेश किया गया, उनसे पढ़वाया गया, उन्होंने अपने नाम लिखे हैं, दस्तखत किए हैं, अपना फ़ोन नंबर दिया है और हाँ या नाम है उसमें जवाब दिया है। तो इसमें कंप्लीट शफाफियत थी। यानी कि आप समझते हैं पूरा डेटा मौजूद है इस हवाले से, कोई इसको भी अगर इसके ऊपर बात करे तो डेटा पूरा मौजूद है, कंप्लीट डेटा मौजूद है, ऑथेंटिक डेटा है और एक साइंटिफिक तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। अभी भी हम ट्रेस बैक कर सकते हैं कि ये राय कहाँ से हम तक पहुँची थी। तो लिहाजा ये जब जमा किया जाएगा तो हम आपको उसकी कंप्लीट डिटेल्स फराहम। अच्छा, लोगों का जज्बा कैसा था? ये कैंप्स लगे होंगे, ये बैलेट बॉक्सेस जो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ये अगर भरे हुए हैं तो इसमें यकीनन लोगों की पार्टिसिपेशन भी है। तो कराची के अवाम ने इसको वेलकम किया है या लोगों को पकड़ पकड़ के लाना पड़ रहा था बॉक्सेस तक कि जिसके हवाले से राय दे दो? आलम ये था कि मैं सुरजानी टाउन के जब दौरे पे गया तो एक कैंप पे बैठा हुआ था, तो मैं ये देख रहा था कि रिक्शे में एक फैमिली जा रही है तो वो रुक करके आ करके और बैलेट डाल रहे हैं, कोई मोटरसाइकिल पे गुजर रहा है तो वो रुक करके आ करके बैलेट डाल के जा रहा है। लोग बाज़ार में शॉपिंग के लिए आए हुए हैं लेकिन वो शॉपिंग छोड़ करके और यहाँ आकर के अपना बैलेट कास्ट कर रहे हैं। बच्चे डालना चाह रहे थे, बूढ़े डालना चाह रहे थे, ख़वातीन ने, जो कि हमें भी अजीब सा लगता था, आकर के हमारे उसमें अपना नाम लिख करके, फ़ोन नंबर लिख करके उसमें अपना बैलेट डाला है। तो लोगों ने बेतहाशा आज़ादाना माहौल में भी और बहुत ही यानी वालेहाना अंदाज से उसकी पजीराई की। चले, मैं बेग साहब आपके पास दोबारा आऊँगा। नाज़रीन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो जमात इस्लामी कराची के जो रहनुमा है मकामी, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कराची के मसाइल के ऊपर भी बात होगी और फिर आगे भी ये पूछेंगे कि हम कि बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से वो किस उम्मीद के साथ, किस कैंपेन के साथ जाएंगे और कराची के हकूक़ के हवाले से क्या कुछ हो सकता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। ब्रेक
بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. موجود ہیں ادارہ نور حق میں. جماعت اسلامی کراچی کا مرکز ہے. ریفرنڈم کے نتائج کا اعلان اب سے کچھ دیر بعد کیا جائے گا جو حقوق کراچی کے عنوان سے ہوا ہے. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو اس حوالے سے ایک بنایا گیا تھا جماعت اسلامی کی جانب سے, اس کے غیر جانبدار ارکان کا دعویٰ ہو رہا تھا, وہ ارکان اب یہاں پہنچنا شروع ہوئے ہیں جو اس دعوے کی یہاں پر جو ہے وہ ایک تصدیق کرتے ہیں. حافظ صاحب, آپ جو مطالبات کی بات کر رہے تھے, دو مطالبات آپ نے بتایا. آپ نے کہا کہ جی ایک تو مردم شماری کے حوالے سے آپ کو تحفظات ہیں کہ اس کو جو ہے وہ درست کیا جائے. دوسرا آپ نے کہا کہ با اختیار شہری حکومت. تو کیا مطالبات کی فہرست یہیں ختم ہو جاتی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ آگے بھی کام چلے گا؟ ویسے تو ہم نے حقوق کراچی مارچ میں 14 نکات پر مشتمل ایک اعلامیہ جاری کیا تھا, لیکن جو کی ایشوز ہیں جس پر ان تمام چیزوں کا انحصار ہے, اس میں تیسرا مسئلہ ہے کہ کراچی کے نوجوانوں کو ملازمتیں نہیں ملتی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اتنی کوٹا سسٹم کی بات کر رہے ہیں. دونوں باتیں ہیں. کوٹا سسٹم تو ایک الگ سے ہم نے پوائنٹ رکھا ہے, اس لیے کہ کوٹا سسٹم, چلے ہم پہلے اس پہ بات کرتے ہیں. 1973 میں تمام پارٹیوں نے جب آئین سازی ہوئی تو یہ طے کیا کہ 10 سال کے لیے ہم کوٹا سسٹم رکھتے ہیں تاکہ سندھ کے جو دیہی آبادی ہے اس کو ہم ڈیولپ کریں گے اور پھر یہ برابر کی سطح پر آ جائیں گے تو ہم پھر جو ہے سب کے لیے میرٹ کر دیں گے. لیکن 10 سال میں بھی انہوں نے ان لوگوں کو اس سطح پہ لے کر نہیں آئے. پھر اس کے بعد وہ ماشاء اللہ تھا تو ماشاء اللہ میں 10 سال کی مزید ایکسٹینشن ہو گئی, 20 سال میں بھی لے کر نہیں آئے. پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب اور MQM کی مشترکہ حکومت نے 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئین میں ترمیم کر کے مزید 20 سال کے لیے کوٹا سسٹم بڑھا دیا. اور یہ بھی بہت عجیب بات ہے کہ وہ MQM جو کوٹا سسٹم کے بنیاد کے اوپر کھڑی ہوئی, اس نے اپنی حکومت کی خاطر جو ہے نواز شریف کی حکومت میں شامل بھی رہی اور کوٹا سسٹم میں 20 سال کا اضافہ ہو گیا. 2013 تک یہ کوٹا سسٹم چلتا رہا. 7 سال سے اس کو لیگل کور نہیں تھا. عمران خان ان سب سے آگے نکل گئے اور انہوں نے ایک SRO کے ذریعے سے غیر آئینی اور غیر اخلاقی اور غیر قانونی طور پر انہوں نے ایک SRO کے ذریعے سے کوٹا سسٹم میں انلمیٹڈ اضافہ کر دیا. غیر معینہ مدت کے لیے کراچی کے نوجوانوں پر شبخون مار دیا. 14 سیٹیں لینے والی پارٹی کا یہ حال ہے کہ اس نے کراچی کے نوجوانوں کے اوپر کوٹا سسٹم مسلط کر دیا. ہم کسی کے خلاف بات نہیں کرتے, ہم نہ کسی لسانی اکائی کے حق کو مارنا چاہتے ہیں, نہ سندھ میں رہنے والے کسی دیہی اور شہری فرد کے ملازمت کے حق کو چھیننا چاہتے ہیں. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ کراچی کے نوجوان کا بھی اتنا ہی حق ہے سندھ کی ملازمتوں پر اور وفاق کی ملازمتوں پر جتنا کسی بھی جگہ کے رہنے والے کا حق ہے. اس لیے ہمارا یہ مطالبہ بہت جینوئن ہے اور ہم حکومت سے بھی مطالبہ کر رہے ہیں اور عوام کے اندر بھی یہ جوش و جذبہ پیدا کر رہے ہیں کہ اپنے حق کے لیے نکلو, ورنہ جن لوگوں کے ہاتھ میں تم نے اپنی باغ دوڑ دی تھی انہوں نے تو تمہارے اوپر یہ پیٹھ میں جو ہے چھرے گھونپے ہیں. پھر یہ جو ملازمتوں کا معاملہ صرف ایک مثال ہے. پچھلے عرصے میں سندھ حکومت میں جو لوکل باڈیز کی اور جو مقامی جو محکمے ہیں کراچی کے اور جو سندھ حکومت سے تعلق ہے, تقریباً 2 لاکھ ملازمتیں ہوئیں تو اس میں سے 1,92,000 ملازمتیں وہ تھیں جن کا کراچی سے کوئی تعلق نہیں تھا. تو یہ ظلم تو نہ کرو نا اس شہر کے ساتھ کہ جو ریونیو جنریٹ کرتا ہے, جو پڑھا لکھا شہر ہے, جو منی پاکستان ہے, جو ٹیکس دیتا ہے, جو پاکستان کی معیشت کا پہیہ جس کی انڈسٹریز چلاتی ہیں, اور اس کا حال یہ ہے کہ آپ یہاں کے نوجوانوں کے لیے سرکار میں جگہ ہی نہ رکھیں. اور ہمارے نوجوان اب کیا کر رہے ہیں, مایوس ہو رہے ہیں, پڑھائی چھوڑ رہے ہیں. پہلی پڑھائی اتنی مہنگی ہو گئی ہے, یا وہ فوڈ سپلائز کا کام کرنا شروع کر دیا انہوں نے, بیراگیر. بھائی دیکھیں ہر کام بہت اہم ہے, اچھا ہے, لیکن ہماری تعلیم کے مطابق اگر ہمارے نوجوانوں کو آپ نوکریاں نہیں دیں گے تو پھر یہ کیا ہوگا, انزائٹی ہوگی, اس کے نتیجے میں فرسٹریشن ہوتی ہے. پھر بھتہ خور گروپ, دہشت گرد گروپ ان لوگوں کو یوز کرتے ہیں. اس لیے ہمارے شہر کے نوجوان کا حق ہے کہ اس کو ملازمت ملے اور یہ کوٹا سسٹم ختم ہو. ہمارا چوتھا مطالبہ یہ ہے کہ یہاں پر اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم ہے وہ ہونا چاہیے جس طرح دنیا کی میگا سٹیز میں ہوتا ہے. یہ سسٹم ڈیولپ ہونے جا رہا تھا نعمت صاحب کے زمانے میں, جیسے ہی ان کا وقت ختم ہوا تو جو چیزیں وہ طے کر چکے تھے اس کو بھی روک دیا گیا اور ہم اس ماس ٹرانزٹ پروگرام سے اور 4 کوریڈور اور انڈر گراؤنڈ اور اوور دی گراؤنڈ جو ٹرین اور بسوں کا سسٹم تھا اس سے محروم ہو گئے. پھر مسئلہ ہمارا یہ ہے, نہیں حافظ صاحب ٹرانسپورٹ پہ ذرا رک جائیے گا. گرین لائن تقریباً بننے والی ہے, یلو لائن سندھ حکومت کہتی ہے 1100 ارب کے پیکج کے اندر ہم بنائیں گے, تو یہ ٹرانسپورٹ کے مسائل تو حل ہونے ہی والے ہیں نا, آپ کو نہیں لگتا کہ حل ہو جائے گا؟ 11 مہینے میں لاہور کی میٹرو بن سکتی ہے, لیکن 4.5 سال میں کراچی کی گرین لائن نہیں بن سکتی. جبکہ گرین لائن منصوبہ خود ایک بہت بیکار قسم کا منصوبہ ہے جو صرف 22 سے 25 ہزار لوگوں کو پیک آورز کے اندر ایڈریس کرے گا, جبکہ صرف اس روٹ کے اوپر کم از کم 15 لاکھ سے 20 لاکھ لوگوں کا فلو ہوتا ہے. تو یہ تو نہ ٹیکنیکلی دیکھا گیا, صرف یہ کہ سب جگہ کر دیا تو یہاں بھی اناؤنس. 2 سال نون لیگ نے مکمل نہیں کیا اور 2.25 سال سے PTI نے. یہ وفاق کا ہے اور وفاق کے تحت یہ کام ہونا ہے, لیکن نہیں کر رہے کام. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ گرین لائن سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. کراچی کی تو اپنی ٹرانسپورٹ کمپنی ہوتی تھی KTC, MQM کے وزیر ٹرانسپورٹ کی موجودگی میں KTC بند ہو گئی اور کسی نے ڈکار تک نہیں لی. یہاں پر ریلوے چلتی تھی. ان لوگوں کی طاقت, جب یہ صبح کہتے تھے کھول دو اور شام کہتے تھے کہ بند کر دو تو پورا شہر کھلتا اور بند ہوتا تھا. ہماری سرکولر ریلوے تباہ ہو گئی, ہماری تعلیم تباہ ہو گئی, ہماری صحت کے ادارے تباہ ہو گئے. ہمارے عباسی شہید کا حال جا کر دیکھیں نا, جو بلدیہ کے تحت چلنے والا ادارہ ہے,
किस तरह से ये ग्रो करता था अफगानी साहब के ज़माने में और बाद में नेमत साहब ने कैसे संभाला था इसको। तो कहने का मकसद ये है मेरे भाई कि ट्रांसपोर्ट ये नहीं दे सकते, बसें यहाँ पर मौजूद नहीं है पब्लिक सेक्टर के अंदर जो सरकार की होनी चाहिए, या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ग्रीन बस लाए थे नेमत साहब, वो भी खा गए बाद में ये लोग, वो भी ख़त्म हो गई। तो ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम नहीं है। और फिर हम ये बात करते हैं कि के इलेक्ट्रिक, जिसके खिलाफ हम मुसलसल जिद्दोजहद कर रहे हैं, ये साहूकार इदारा बन गया, इसको फ़रोग़ कर दिया। हमारा अपना इदारा 1913 में अंग्रेज़ के ज़माने में कायम हुआ था ये KESC, 1980 में ये प्रॉफिटेबल इदारा था, 1990 में ये प्रॉफिट देता था। इसको 2005 में सिर्फ 1.5 अरब रुपए की सब्सिडी देनी पड़ती थी, और अब इमरान खान ने 90 अरब रुपए की साल की सब्सिडी दी है के इलेक्ट्रिक को। और फिर उन्होंने जो सबसे बदतरीन CEO था ताबिश गौहर, उसको अपनी तवानाई का मुशीर बना लिया है। जो तो सबसे आप नहीं समझते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और के इलेक्ट्रिक एक ही पेज पर हैं कराची के मैं शहरियों के कहता हूँ हवाले से? वो एक ही पेज क्या होता है, वो तो मतलब सब कुछ वही है, किताब ही वही है। वही है। इसलिए कि आप ये देखिए कि जो आरिफ नकवी साहब हैं, जो अबराज ग्रुप, क्योंकि मालिकों में से एक मालिक, वो अबराज ग्रुप के मालिक, इन्होंने फंड दिया PTI को, और ये तो प्रूवन है, इसके तो ये तरदीद भी नहीं करते इलेक्शन चलाने पर, और उसका रिवार्ड इनको ये मिला कि एडवाइजरी काउंसिल जो इकोनॉमिक्स की थी वो इसका हिस्सा बन गए। वो तो लंदन में गिरफ्तार हो गया है बंदा, और वो तो डिक्लेयर हो गया है बैंकक्रप्ट, और वो तो जो इसको पेनल्टी लग गई यहाँ पर दुबई में, वरना रात ढूंढ रही है खोजन कहाँ, मैंने ढूंढ लिया उसके चेहरे पे यहाँ। चांद सा रोशन होगा चेहरा लक्स से, जिसमें है 7 ब्यूटी इंग्रेडिएंट्स। चांद सा रोशन चेहरा लक्स। रॉबिन ब्लीच मल्टीपर्पज क्लीनर, कोरोना वायरस के खिलाफ मौसम। क्या आप जानते हैं कोरोना वायरस के जरासीम आपके फर्नीचर पर मौजूद हो सकते हैं। रॉबिन ब्लीच मल्टीपर्पज क्लीनर करे आपके फर्नीचर से 99.9% जरासीम का खात्मा। रॉबिन ब्लीच मल्टीपर्पज क्लीनर, कोरोना वायरस के खिलाफ मौसम। हे सारा जल्दी, लेट हो रहे हैं। मेरे बगैर नो सेल्फी। Wait, no need of flash. Because with Sunsilk Black Shine, हम करें shine 24/7. सनसिल्क ब्लैक शाइन, इसमें है 5 नेचुरल ऑयल्स जैतून के तेल की ताकत के साथ। ये नरिश करे अंदर तक, ताकि बाल करें शाइन 24 आवर्स। तो अब मेरे बालों का शाइनिंग ग्लो will never go. का जो है वो भुगतान हो, तो इसलिए हम ये नहीं होने देंगे। इसीलिए तो चीफ जस्टिस ने कहा है कि ये ऑपरेट कहाँ से हो रही है कंपनी, क्या ये मुंबई से ऑपरेट हो रही है? ये वो सवालात थे जो हम उठाते थे, और कोई जो है वो जवाब नहीं देता था। अब सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया है, जमात इस्लामी की पिटीशन भी मौजूद है। तो हमारे बुनियादी पॉइंट्स में ये शामिल है कि हम इन इदारों की जो बालादस्ती है उसको खत्म करना चाहते हैं, इनका लाइसेंस। चलें हाफिज साहब मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। कुछ थोड़ा सा जो एक पूरा जो रेफरेंडम का हम देख रहे हैं कि यहाँ पर माहौल है, सैकड़ों कारकुनान इस वक्त इदारा नूरियत के अंदर मौजूद हैं, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बैलेट बॉक्सेस भी आए हैं जिसको काउंट करने का अमल भी जारी है, और इलेक्शन कमीशन के अरकान जो है वो हमारी पुष्ट पर जो सीटें लगी हुई हैं वहाँ पर बैठना शुरू हो गए हैं। जमात इस्लामी ने ये जो रेफरेंडम था इसको ऑनलाइन भी सहूलत लोगों को दी थी कि वो अपने वोट को कास्ट कर सकते हैं। इस ऑनलाइन सहूलत का किस तरीके से इस्तेमाल हुआ और किस तरीके से इसको जो है वो चलाया गया, और खास तौर पर जब RTS बैठ जाए जिस मुल्क में, उसमें ऑनलाइन के ऊपर कितना भरोसा किया जा सकता है। सलमान शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जमात इस्लामी के इंचार्ज हैं सोशल मीडिया डिपार्टमेंट के, उनसे पूछते हैं। सलमान साहब, RTS बैठ जाता है यहाँ पर, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ऐलान करने से कुछ पहले जो है वो आपका ऑनलाइन सिस्टम बैठ जाए और आप कहें कि जी रिजल्ट तो, या आप रिजल्ट मुरतब कर चुके हैं? नहीं, बहुत शुक्रिया फ़वाद। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है वो बड़ा रोबस्ट किस्म का सिस्टम बनाया है, और मैं समझता हूँ कि न सिर्फ कराची बल्कि पाकिस्तान और बहुत बड़ी तादाद के अंदर पूरी दुनिया से वो लोग जो कराची का दर्द रखते हैं, और चाहे वो कोई सी भी ज़बान बोलते हैं, बड़ी तादाद में हमारे पास जो है वो रिज़ल्ट्स आ चुके हैं। और रात 12 बजे तक जो है वो हम ऑनलाइन पोज ले रहे थे, और इंशाल्लाह जैसे ही यहाँ पर रिज़ल्ट अनाउंस होना शुरू होंगे तो हम जो हमारे ऑनलाइन रिज़ल्ट्स हैं वो भी इंशाल्लाह हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल होंगे। सोशल मीडिया के जो जितने हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, पेजेस हैं, उन सब के ऊपर आ रहे होंगे। अच्छा, कराची के शहरी तो दुनिया भर में मौजूद हैं जो कराची में पैदा हुए, यहाँ पले बड़े, तो जो ऑनलाइन है उसमें तो ये भी पता लग जाता है कि किसने कहाँ से वोट कास्ट किया। तो कराची से बाहर से लोग भी कराची के शहरी जो है वो कास्ट करते हैं। हमने इसकी 4 कैटेगरीज बनाई हैं। एक वो कैटेगरी है कि जो कराची के अंदर है, एक वो कैटेगरी है कि जो पाकिस्तान के अंदर
अंदर जो लोग हैं और ओवरसीज़ की जो है वो दो अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं, मिडिल ईस्ट और जो हमारे वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं। तो ये जो है वो बिल्कुल हमें बिल्कुल ये भी पता चलेगा। उसके अलावा मैं आपको सोशल मीडिया पर बताऊं कि सोशल मीडिया पर हमारी तवक्को से बहुत ज़्यादा, यानी आप ये देख सकते हैं, ख़ुद जाके भी वेरीफाई कर सकते हैं कि जमात इस्लामी कराची का फेसबुक पेज हो, हाफिज़ साहब का फेसबुक पेज हो, इतना ओवरवेलमिंग है कि हम खुद नहीं सोच सकते थे। आप हाफिज़ साहब की वीडियोस, यानी शायद हाफिज़ साहब की वो वीडियो जिसमें कोटा सिस्टम के बारे में पहली मरतबा लोगों ने, आप कमेंट्स में जाके देखें, उन्होंने कहा कि हमने तो शायद कभी कोटा सिस्टम को समझा ही नहीं था। मर्दमशुमारी के हवाले से आप जाके देखें तो लाखों व्यूज़ हैं और उसकी तादाद मिलियंस के अंदर जो उसकी रीच है। यानी कि आप ये कहते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और लोग नजीब अयूबी साहब मौजूद हैं, जमात इस्लामी के लीगल के जो मामला हैं वो देखते हैं। नजीब साहब, सड़कों पर तो आप लोग निकल आए, रेफरेंडम भी हो गया, एक बहुत बड़ा जलसा भी हुआ, तो कानूनी तौर पर ये सारे मुतालबात जो हैं इसको कोर्ट के अंदर ले जाना और इसके अंदर कोर्ट में बात होना, उस हवाले से भी कोई आप लोग सोच रहे हैं, या कानूनी चीज़ें आप कहते हैं कि अगर चीफ जस्टिस साहब को सोमोटो लेना होगा तो ले लेंगे? नहीं फवाद, दरअसल हमने दोनों तरीके इस्तेमाल किए हैं। जहाँ तक कानून की बात है तो जाहिर है कि हमारी टीम वो सारे काम कर रही है। अगर हम नंबर्स पे जाते हैं तो सानिया बल्दिया के जो इतना एक ज़ालिमाना ये कत्लेआम किया गया गरीब मज़दूरों का, उस पर हम कोर्ट में मौजूद हैं। हम कोर्ट में मौजूद हैं बिजली के हवाले से, हम कोर्ट में मौजूद हैं मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ के हवाले से। तो ये तो एक छोटा सा पोर्शन है, और कोर्ट का खैर हाल सारी दुनिया को मालूम है कि वहाँ पर अगर मैं आज किसी चीज़ को लेके जाता हूँ तो मेरे पोते जो हैं वो हेयरिंग सुन रहे होंगे। लेकिन किसी चीज़ को लेजिटिमेट हमें तो कोर्ट नहीं रिलीफ भी करना है मिला है, बहुत सारी जगहों पे हमें रिलीफ मिला। कनीस फातिमा सोसाइटी नंबर 2 और इसी तरीके से दूसरी सोसाइटी मून गार्डन, जहाँ के रिहायशी रातों रात दर बदर हो गए थे, इनको रिलीफ भी मिला। लेकिन हम कोर्ट नहीं, हम तो घर घर पहुँच गए ना। ये अवामी मसाइल को लेके, और एक पैरेलल गवर्नमेंट है जमात इस्लामी, पब्लिक एड एक पैरेलल गवर्नमेंट है। यह सारा निज़ाम मफलूज हो चुका है। या IG DIG अगवा हो जाता है, वो FIR नहीं दर्ज करा सकता। तो ये पूरा निज़ाम एक करप्ट निज़ाम है। यहाँ पर आम आदमी को कोई सहूलत नहीं मिल रही। मेरे उल्टे हाथ पे मीडिया देख सकता है कि ये पब्लिक एड का सेक्रेटेरिएट है। यहाँ सुबह से शाम तक लोगों के और रात गए तक ईमेल्स के ज़रिए हमारी वेबसाइट पे लोगों की प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। उन प्रॉब्लम को जमात इस्लामी एड्रेस कर रही है, उनको हल कर रही है। पेटी इश्यूज़ हों या बड़े मेजर इश्यूज़ हों, वो तमाम मामला, यहाँ देखिए ना बहरिया टाउन का मसला हुआ, हज़ारों लोग इफेक्टिव हैं, सिर्फ कराची में रहने वाले नहीं, पाकिस्तान में रहने वाले, इंटरनेशनल ओवरसीज़ रहने वाले, उनका मामला अल्हम्दुलिल्लाह हल हो रहे हैं। इसी तरीके से सोसाइटीज़ के लोग हैं, नया नाज़मात का मामला है, और बेशुमार मामलात हैं, रोज़ाना के मामलात लोगों के, रोडों का ना बनना। खुद यूनिवर्सिटी रोड कराची के अंदर एक ऐसी हैरत अंगेज़ मिसाल है कि 3 महीने की पब्लिक एड जमात इस्लामी की कैंपेन और एक ऐसी नजीब साहब, प्रोग्राम में इख्तिताम का वक्त है। हाफिज़ साहब आपके साथ ही इख्तिताम करेंगे क्योंकि आप ही ये कैंपेन चला रहे हैं। इख्तिताम कीजिएगा थोड़ा तेजी से मुतालबात को बता के, अगला लाएमल भी बताइएगा कि अगर मुतालबात मंजूर ना हुए तो आगे क्या करेंगे। हमारा जो रेफरेंडम कमीशन है, हाजी नाजिम एफ हाजी साहब, डॉक्टर साद खालिद नियाज साहब, जावेद बिलवानी साहब, बाबर खान साहब, ये सब तशरीफ़ ले आए, और ये सब अपनी अपनी फील्ड के समझ लें आप जाने माने लोग हैं। और मैं एक मरतबा फिर आपके तवस्सुत से अहले कराची नहीं, पूरे पाकिस्तान और जहाँ जहाँ पाकिस्तानी रहते हैं उन कराची का मुकदमा पेश करना चाहता हूँ। कराची को उसका हक़ मिलना चाहिए, कराची को उसकी नुमाइंदगी मिलनी चाहिए, कराची की आबादी को सही काउंट होना चाहिए, ये फ्रॉड ख़त्म हो, ये जालसाजी ख़त्म होनी चाहिए। अरबाब इख्तियार इस बात को सुन लें कि अब उन्हें कराची की मरदमशुमारी ठीक करनी पड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। कराची को इख्तियार मिलना चाहिए। ये गासिबाना, आमिराना और वडेरा शाही वाला जो एक्ट है जो हम पर मुसल्लत किया गया है, और ये भी बात समझ लें कि हम किसी लिसानी इकाई के ख़िलाफ़ नहीं हैं। लाड़काना को भी हक़ दो, जैकबाबाद को भी हक़ दो, कराची और हैदराबाद और शिकारपुर को भी हक़ दो। इन सब का हक़ है कि ये शहर हैं, और कराची मेट्रोपॉलिटन मेगा सिटी है, दुनिया में ग्लोबल सिटी के कैटेगराइजेशन में आता है, मिनी पाकिस्तान है, पाकिस्तान को चलाता है, तो इसको भी चलाने के लिए सबको किरदार अदा करना पड़ेगा। आप हमें खैरात मत दें पैकेजेस की, आप हमें हमारा हक दें। आप 1.5 साल पहले आए, आपने 162 अरब रुपए की खैराती पैकेज का ऐलान किया, तकरीर वही वाली थी, तकरीर अब भी वही थी, प्रोजेक्ट वही गिनवाए, 162 जीरो हो गए, 1100 का ऐलान कर दिया। खुदा ना खास्ता कोई और कैलेमिटी होगी, ये फिर आएंगे, ये 2200 अरब रुपए का ऐलान करके चले जाएंगे। इनको इससे कोई गरज ही नहीं है, इनके लोग जानते ही नहीं है कि शहर क्या है। जमात इस्लामी इस शहर की सही कस्टोडियन है, जमात इस्लामी ने इस शहर को बनाया है। जमात इस्लामी जब कोई नहीं बोलता तो बोलती है। जमात इस्लामी के हज़ारों वर्कर पानियों में उतर कर लोगों की खिदमत करते हैं,
कोरोना में घरों में बैठने के बजाय आवाम के दरमियान रहते हैं। इसलिए जमात इस्लामी इन जालिमों के रहम करम पर इस शहर को नहीं छोड़ेगी। अच्छा, हाफिज साहब- लोग हमारा साथ दें, हम लोगों के साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह और शहर को हक दिलाएंगे। अच्छा हाफिज साहब, इस कैंपेन का अगला मरहला क्या होगा? जलसे के बाद रेफरेंडम हुआ, रेफरेंडम के बाद अब मजीद क्या देखिए, है? आपको याद होगा कि जब वो हुकूक कराची मार्च हुआ तो वो जाहिर है कि इतनी बड़ी चीज थी कि पार्टियां तो उसके ऊपर 2-2 साल तक उसी का तस्करा करते रहते हैं कि हमने इतना बड़ा जलसा किया था। हमने वहां कहा कि ये जलसा बराए जलसा नहीं है, ये पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, ये हुकूक की तहरीक है जिसका ये नुक्ता आगाज है। और वहीं हमने ऐलान किया कि 14 अक्टूबर को पूरे मुल्क में जमात इस्लामी कराची का मुकदमा लड़ेगी और लड़ा। इस्लामाबाद में रैली हुई, लाहौर में हुई, मुल्तान में हुई, फैसलाबाद में हुई, गुजरात में और पेशावर में हुई। कोई पार्टी आज तक कराची को नेशनल लेवल के ऊपर लेकर नहीं गई उसके हक के लिए। जमात इस्लामी ने इस काम को किया, सिराज साहब ने उसका ऐलान किया। उसके बाद हमने कहा हम रेफरेंडम करेंगे और आपने देखा कि कोई गली मोहल्ला ऐसा नहीं था। कौम नॉन इश्यूज में उलझी हुई है और लोग अपने केसेस के ख़त्म करने के लिए, लोग जो है अपनी लिसानी सियासतें चमकाने के लिए, लोग जो है वो अपनी नाअहलियों को छुपाने के लिए एक दूसरे के खिलाफ रोज़ मुर्गों की तरह टीवी पे लड़ रहे होते हैं। और रोज़ इनके वजीरों और मुशीरों को और अपोजिशन को ये माल मसाला चाहिए होता है कि इनकी सियासत जिंदा रहे। कराची का ये रेफरेंडम उस तरह से कवर नहीं हो सका, लेकिन हमारा कारकुन मीडिया बन गया। हमारे कारकुन ने मीडिया का किरदार अदा किया, गली मोहल्ले में पहुंचे, बाजारों में पहुंचे और हम खुद गए। हम इंडस्ट्रियल एरियाज की जो एसोसिएशन है उनके पास पहुंचे, कराची बार में गए, हजारों वकला ने लाइन में लग के वोट डाला। अगला मरहला तो जब ये गिनती पूरी होगी, रेफरेंडम कमीशन ऐलान करेगा तो इंशाल्लाह हम एक बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। या अगर आज गिनती रात तक मुकम्मल हो गई तो ठीक, वरना कल फिर हम बताएंगे और मुशावरत कर रहे हैं इस सिलसिले में कि कराची में इस कैंपेन को जो अब इसने बूस्ट पकड़ा है, ये आगे बढ़ी है, इसको हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। हमें हमारा हक चाहिए, हमें इख्तियार चाहिए, हमारी गिनती पूरी चाहिए, कोटा सिस्टम का खात्मा चाहिए। हाफिज साहब, एक चीज़ और बताइएगा आखिरी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो आपका इलेक्शन कमीशन है वो ऐसे लोगों पर है जो शहर के मारूफ लोग भी हैं लेकिन उनका बराह रास्त जमात इस्लामी से ताल्लुक नहीं है। तो यानी कि कह सकते हैं कि गैर जानिबदार यहाँ पर पैनल मौजूद है कि जो गिनती के अमल को मॉनिटर भी करेगा और रेफरेंडम को भी देखता रहे। तो लोगों के जो मुख्तलिफ तबकात हैं, शहर ज़िंदगी के मुख्तलिफ तबकात हैं, शहर कराची के जो मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं, उनकी तरफ से आपको कैसा रिस्पॉन्स? जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। देखें, ये दोनों की क्रेडिबिलिटी है, ये इनकी क्रेडिबिलिटी है कि हमने इनसे बात की कि आप गैर जानिबदार रेफरेंडम कमीशन बने, और ये जमात इस्लामी की क्रेडिबिलिटी है कि इन्होंने कहा कि ठीक है, पार्टी और सियासत अपनी जगह, ये कराची का कॉज है, ये कराची के हक का कॉज है, तो हम इसमें आपके लिए तैयार हैं। अभी अनवर मंसूर खान साहब भी तशरीफ लाने वाले हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल हैं। इसी तरह हमारे प्रेस क्लब के जो सदर हैं इम्तियाज़ फरहान, वो भी होंगे इसके अंदर, और बहुत सारे, वहीद अहमद साहब हैं इसके अंदर। इसमें जो है वो सुहेल अफजल साहब जो यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के, फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जो है सेक्रेटरी जनरल हैं। तो कराची बार की नुमाइंदगी नईम कुरैशी साहब इसके अंदर मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये है कि इन लोगों ने इसको किसी पार्टी का इशू नहीं समझा या कोई इवेंट नहीं समझा है, इन्होंने कराची का मसला समझ के इसमें हमारे साथ ताउन किया, हम इनके शुक्रगुजार हैं। और हम कराची के लोगों से भी ये कहते हैं कि आपने ये रेफरेंडम कोई पार्टी रेफरेंडम नहीं, बल्कि आपने अपनी राय का इजहार किया है। ये जब मिलियंस ऑफ पीपल की राय हम लेकर जब जाएंगे इंशाल्लाह, तो इसमें कुव्वत होगी, ताकत होगी, और इस राय की क्रेडिबिलिटी ये रेफरेंडम कमीशन बताएगा। और इंशाल्लाह इसके बाद एक नए एतमाद के साथ कराची आगे बढ़ेगा। कराची के अवाम को पता होना चाहिए कि अब उन्हें नाउमीद होना छोड़ देना चाहिए। जिन लोगों से नाउमीद हैं उनको छोड़ दीजिए, जमात इस्लामी आपके साथ खड़ी है। आखिरी मैसेज आप क्या देंगे? एक बिल्कुल 30-40 सेकंड। कराची को उसका हक दो, हमें खैरात नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए, और इस हक को जब तुम अगर तरीके से दोगे तो लेंगे, वरना छीन कर लेंगे, और आइंदा के लाएमल में ये सब चीजें शामिल होंगी इंशाअल्लाह ताला। चलिए नाज़रीन, यहाँ पर जमात इस्लामी के कारकुनान मौजूद हैं जो चार्ज भी हैं। रेफरेंडम के नताइज का कुछ देर में ऐलान, बल्कि काउंटिंग का कुछ देर में जो है वो इब्तिदा होगी। और ये हाफिज साहब का कहना ये था, जो कि जमात इस्लामी कराची के अमीर है, कि इसका कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये काउंटिंग कब कंप्लीट होगी, और उसके बाद ही इस मुहिम के हवाले से, इस कैंपेन के हवाले से अगले मरहले का इंतजार किया जाएगा, ऐलान किया जाएगा। तो इस चीज़ को भी देखेंगे कि जमात इस्लामी कराची में इस कैंपेन को किस तरह से लेकर चलती है। होना जो भी चाहिए कराची के अवाम के हक में होना चाहिए, क्योंकि लोग जो पहले नाफ तक डूबे हुए थे वो अब गले तक डूबे हुए हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले प्रोग्राम तक लिया दीजिए। अल्लाह हाफिज़।